Welcome to the biggest national orchid park in India. ये एक स्पीसीज है ऑर्किड्स का, लेकिन आपको सारे के सारे नाम पता है? अच्छा, एक के हुतागे एक से बरांगा orange, pomelo, स्टार फ्रूट हाँ, star fruit, pineapple, watermelon. बे इसके लिए क्या टिकट लेना पड़ता है? अच्छा ऐसे ही कोई. You got one rhinoceros here, you got another rhinoceros there. So that's the Assam tourism, you know, that's the place you have to go. Okay, so let's find a shared car to the orchid garden. Okay, I don't know which way. भैया orchid garden किस तरफ है? उस तरफ ना? ठीक है. Okay, so the orchid garden is on your right. So let's find a shared taxi. Okay guys, so I just took a toto. So from here, you know, just from in front of the Assam Tourism or Rhino Cafe, you know, I'll be going to the orchid garden. So if you guys reserve it, it's going to be 50 rupees, or you know, if you just take you know, sharing, then it's going to be 20 rupees. तो भैया हमको लेके जा रहे हैं अभी ऑर्किड गार्डन. भैया यहाँ से कितना दूर है ऑर्किड गार्डन? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर पकड़िए. 2 किलोमीटर. अच्छा. और कब तक खुला रहता है भैया वो वाला ऑर्किड गार्डन? ऑर्किड गार्डन अभी देखिए सुबह अभी 7 बजे खुल गया. हाँ हाँ, अच्छा 7 बजे खुल गया. अच्छा, ये अभी रात 8 बजे बंद होगा. रात का 8 बजे बंद होगा. अच्छा, सही है, धन्यवाद. Okay guys, so finally we've reached the orchid garden. So let's try to buy myself a ticket. So they've just opened, you know, you can see some fruits and apples and all. So there's the ticket counter over there. So let's get a ticket. भैया एक का कितना है? 200. Okay. So guys, for one person the ticket it's $200. धन्यवाद भैया. है तो भैया ठीक ठाक. So guys, I just got a ticket. So one ticket is 200. So now we'll try to enter the orchid garden. So you guys can see the board. Welcome to Kaziranga National Orchid Park. So some more pineapples if you guys love fruits. You guys can, you know, get trees and all and other memorabilia from here. Okay, look at the black rhinoceros. Now you've got so many little rhinoceroses here. Turtles, elephants, deer. He's setting up the store, you know, because it's just 8 o'clock now. And it's just 8 o'clock, so they're just opening the stores. So here also, guys, you can see some more rhinoceroses and earrings and other things you can decorate your house with. So mostly with bamboos. I think these are made with bamboo cups and straw. Some hats, some stores. Okay, so this is, you can see the board, Kaziranga National Orchid Park. Namaste bhaiya. Hanji, ticket. Dhanyavad. Okay, so guys, welcome to the biggest national orchid park in India. So now we'll go inside. So namaste. So on the right you have the orchidarium. तो चलिए फिर आप बता सकते हैं थोड़ा? हाँ ठीक है. नमस्ते. हाँ जी.
इंग्लिश और हिंदी? जो भी हिंदी जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, यहाँ पे हमने मोर देन 700 ऑर्किड कंजर्व किए। अच्छा। एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है। ये असम का स्टेट फ्लावर है, लेकिन इसका ब्लूमिंग ये स्टेट फ्लावर है। यस, अच्छा स्टेट फ्लावर ऑफ असम। बट ब्लूमिंग सीजन है मंथ ऑफ अप्रैल को, क्योंकि मिड अप्रैल को स्प्रिंग फेस्टिवल बिहू होते हैं, तब लड़कियाँ इसके फ्लावर को हेयर बन में बिहू लगा कब होता है? बिहू अप्रैल मंथ को। अप्रैल में 3 बिहू होते हैं, 3 बिहू होते हैं अप्रैल। अलग-अलग अलग अलग होते हैं। जो मकर संक्रांति मनाते हैं ना जनवरी को, वो माघ बिहू बोलते हैं। वो आपका मीन्स इसमें कल्टीवेशन करने के बाद में वो हार्वेस्टिंग के टाइम होते हैं। हार्वेस्टिंग बिहू होते हैं। हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन बिहू होते हैं आपका रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू वो 14 अप्रैल को होते हैं, तब ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स उसमें पेडी कलेक्शन करने का टाइम होता है, तो उसमें जो भी बेल हो गया ये सबको प्रिपेयर किया जाते हैं, तैयार किया जाते हैं। अरे वाह। तो उस टाइम को ये ऑर्किड ब्लूम होते हैं, और उस टाइम को हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तब इसके फ्लावर को हेयर बन में लगा के बिहू डांस करते समय अच्छा, लगाते हैं। वही सर में जो लगाते पिंक हैं। एंड व्हाइट वाला ये ऑर्किड है, डेंड्रोबियम अच्छा। फॉर्मोसम। ये एक स्पीसीज है ऑर्किड्स का, लेकिन आपको इसको सारे के सारे नाम पता है? थोड़ा बहुत ये हमने ट्री फंड लॉग में लगाया है। अच्छा, आपका बायोलॉजी था क्या स्कूल में? वैसा बैकग्राउंड मेरा बायोलॉजी नहीं था, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा से कोर्स किए, एक्स्ट्रा से स्टडी किए अच्छा, मतलब सिर्फ ऑर्किड्स के लिए। ऑर्किड्स के लिए। ओके, मुझे लगा था आपने पीएचडी कर रखा है। एपीफाइट ऑर्किड को आप ऐसा पॉट में प्लांट कर सकते हैं, ब्रिक्स, चारकोल, कोकोनट फाइबर डाल के, विदाउट सॉइल। जैसे आपने कोकोनट शेल में देखा ना, बहुत डिफरेंट टाइप से आप उसको प्लांटेशन कर सकते हैं। एयर प्लांट्स को, एपीफाइट ऑर्किड को आप पॉट में करने से ब्रिक्स, चारकोल, कोकोनट फाइबर डाल के आप प्लांट कर सकते हैं, या फिर आप डेडवुड लॉग में प्लांट कर अच्छा, सकते लॉग हैं, में भी आप लोग कर सकते या हैं। कोकोनट शेल में भी कर सकते हैं। वो क्या लोटस पॉन्ड? लिली है। अच्छा, वाटर लिलीज। ओके, सो गाइस, और ये सिलोजाइनी ओबेलिस, ये हाउस फ्लाइज ऐसा लगते हैं। अच्छा, हाउस फ्लाइज। ओके, दिस लुक लाइक हाउस फ्लाइज। डज इट लुक लाइक हाउस फ्लाइज? ये ब्लैक बैट फ्लावर, लेकिन अभी थोड़ा ड्राई हो गया ये ब्लैक बैट। अच्छा, ब्लैक पूरा बैट डिटेलिंग फ्लावर। looks like a black bat. Can you see? Okay guys, so here I have the Assam National Museum, so let's go in. And I think we have got another guide here, and like she's going to be showing us around the museum. Namaste. So अच्छा, चलिए फिर यहाँ से आप ये वाला दरवाज़ा लग रहा है ना? एक्चुअली असम पर टोटल 97 ट्राइब कम्युनिटीज़ है। 97 तो सब में मतलब सिमिलरिटी होने के बावजूद भी उनके जो इसमें रिवाज है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और लैंग्वेज तक अलग अलग होते हैं। तो वो लोग जिन चीज़ों को पहले यूज़ किया करते थे या फिर अभी भी करते हैं, इनमें से कुछ एंटिक है और कुछ अभी भी यूज़ किया करते हैं। अच्छा। उन सभी चीज़ों को मतलब यहाँ पर रखा गया हुआ है। देखिए, जो फर्स्ट में जो दरवाज़ा है, ये दिमासा कसाई ट्राइब के लोग इसको मंदिर पे लगाने के लिए यूज़ किया करते थे। मंदिर पे? अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा है, और ये छोटा होने की वजह से वो लोग जब भी मतलब प्रेयर हाउस में जाते थे तो इसके साथ झुका के जाया करते थे। अरे वाह। और इसके ऊपर जो है उसको तेरेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेरेब। तेरेब बोलते हैं। ट्राइब के लोग इसको यूज करते हैं धूप और बारिश से बचने के लिए। अच्छा। साथ ही में ये अब से 150-200 साल पुरानी एक पालकी है, जबकि अच्छा, ये वाला काफी पालकी। छोटा है, क्योंकि अब से 150-200 साल पहले जब लड़की की शादी होती थी तो 8-9 साल में ही मतलब हो जाते थे। 18 साल में? अच्छा। 8-9 साल में। अच्छा, 8-9 साल में, सॉरी। इसको ऊपर से कवर क्या हुआ रहता है ताकि दुल्हन को मतलब कोई दिखे ना। ओ, मतलब यहाँ से कपड़ा लगा रहता है, कपड़ा जैसा। अच्छा, ओके, सो गाइस, दे हैव अ कवर शॉट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग सो दैट नो वन कुड सी द ब्राइड। और इसको स्नेल पालकी बोलते हैं। स्नेल पालकी। अच्छा। इसकी बॉडी जो पार्ट है ये थोड़ा बहुत स्नेल की तरह मिलता जुलता है, इसलिए इसको स्नेल पालकी बोलते हैं। एक्चुअली अहोम जो डायनेस्टी थे वो 1228 में थाईलैंड से आए थे, और लास्ट वो लोग बहुत गुस्से वाले थे, तो ड्रैगन सिंबल को वो लोग अपना प्रतीक मानते थे। अच्छा। वो लोग जिन चीज़ों को पहले यूज़ किया करते थे सभी चीज़ों में ये ड्रैगन सिंबल पाया जाता है। और ये जो 400 साल पुरानी एक पालकी है, इसमें सिर्फ रॉयल फैमिली यानी कि राजा महाराजा के जो बेटे थे या फिर बेटी थी, उनको अगर कहीं पे खेलने जाना होता था तो यहाँ पे मतलब बिठा के उनको लेके जाते थे। अच्छा, पालकी पे बिठा के खेलने।
और ये हो गया नागालैंड का एक ट्राइब जो कि कन्याक ट्राइब, जिसको डेंजरस ट्राइब भी बोलते हैं। कौन सा ट्राइब? कन्याक ट्राइब। कन्याक ट्राइब। तो कन्याक ट्राइब में इन दोनों चीज़ को रेनकोट की तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, रेनकोट ऊपर पार्ट पे पहनते हैं और इसको नीचे पार्ट पे पहनने के लिए यूज़ करते हैं। ये चाइल्ड मैरिज के पालती है। अच्छा, ओके, सो दिस इज द चाइल्ड मैरिज पॉलिसी। हैंडलूम के ये सब पार्ट है। अच्छा, सारे के सारे हैंडलूम। सो मेनली लाइक असम में तो लाइक पॉपुलर वो हैंडीक्राफ्ट जो है लाइक यहाँ के जो लाइक ट्राइबल्स लोग बनाते हैं ना। अच्छा, ये कुपन है, ये रेयरदरी सिल्क है, ये एरी सिल्क और ये मुगा अरे सिल्क। वाह, अच्छा ये वाला मुगा सिल्क है। ये तीनों चीज को मतलब ये रेशमी कीड़ा निकालता ये शायद से सबसे एक्सपेंसिव होगा ना गाइस, कैन यू सी? है। दिस इज द कॉकून। असम पर अच्छा, यहाँ पर ये सब हैंडलूम है। एक्चुअली ये सबसे प्राइमेटिक वाला हैंडलूम है जो कि मतलब कार्बी ट्राइब इसको या फिर हिली एरिया के जो ट्राइबल लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा इसको मतलब यूज़ करते हैं। धागे से कपड़े बनने का जो फर्स्ट सेक्शन है वो इससे शुरू होता है और ये बहुत हार्ड होता है। देखिए पहले मतलब धागे से कोई भी कपड़े को बनाने के लिए पहले उन धागे को 2 लेयर में सेट कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, उसे 2 लेयर के बीच से धागा को थ्रो करके फिर इसको झाँकने से कपड़े बनते हैं। ये बहुत हार्ड होता है। अच्छा, सो दिस इज अ सैंपल राइट? ये वाला एक सैंपल है। 7-8 दिन में इतना एक रोल बनता है। 7-8 दिन में? अरे बाप, देख ही सकते हो दीदी का मेहनत। और इस रोल से बाद में सब बैग बनते हैं। अच्छा, इस पूरा एकदम लंबा जब हो जाता है उसके बाद इसको काटते हुए मतलब काटने के बाद इसको बैग बनाते हैं। ओके, मतलब काट के स्टिच करके। हाँ, हाँ। वहाँ पे भी इसमें अभी मेखला चादर बने हैं जो मेखला चादर, असमीज कल्चर की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ये जो मैं पहन रही हूँ। अच्छा, आप भी मेखला चादर पहने हुए? अरे वाह, सही है। मेखला चादर यहाँ पे मतलब ये बना रहे हैं। ये आपका बनाने में टोटल कितना टाइम लगेगा ये वाला? फुल डिजाइन देगा 15 हाँ? दिन का 15 दिन तक? तो आप 15 दिन तक यही बनाओगे? এখন है। अरे वाह, look at it. This is how she's doing every single one of that. ये तो बहुत मुश्किल है दीदी। हाँ, बहुत मुश्किल है। She's tying it there. तो 15 दिन में सिर्फ एक ही साड़ी बनता है? अरे बाप रे। और ये साड़ी को मैंने 2 बार अलग अलग 3 पार्ट हो गए। नीचे मेकेला, ऊपर सादर और मेकेला, नीचे वाला पोर्शन मेकेला बोलते हैं उसको। मेकेला, सादर, सादर, हाँ, ब्लाउज। अच्छा, ऊपर ब्लाउज पीस। ओह, 3 पार्ट में? 3 पार्ट में 1 महीना लगे। 1 महीना? अच्छा, 15 ऐसा करके? हाँ। बाप रे बाप। तो ये एक साड़ी जब आप बना लेते हो उसका प्राइस कितना होता है? प्राइस में डिजाइन में ऊपर डिपेंड करेंगे। 4,500 3,000। इतना मेहनत के बाद और ज़्यादा होना चाहिए तो 3,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे डिजाइन में फूल देंगे। अच्छा। डिजाइन पे मैं एक के उतागे एक से बढ़ाऊंगा, ऐसे बढ़ाऊंगा, वापस। अच्छा, ऐसे बनाऊंगा। So like that, you know, she's making the saree. Wow. असम पर जो टोटल 97 ट्राइब कम्युनिटीज है उन सबके ये सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। अच्छा, ओके, लाइक हर एक टोटल 97 टाइप्स ऑफ साड़ीज है, लाइक अलग अलग मतलब ड्रेसेस होते हैं। So there are 97 different saris here. Can you just imagine? So all, like each one of them are made by, you know, like a separate tribe. Just look at the different saris. So many. So this one, you know, this is a mishing muffler, ring cup. So all the names are also here. Dumar. So this is like Gangsheng, Gero. Okay guys, now we are gonna go up and see, you know, what other things they have. But okay, so that's a photo gallery over there. I don't think so I'll be going into the photo gallery.
So this is a juice place, you know, you can have some juice made of fruit. So they have a fruit here, crispy local snacks and jalpans with a santi. Guys, the dance was awesome. You know, I think the Bihu dance is gonna be my favorite. You know, there is no alternative to the Bihu dance. Okay, so let's see what juice they have. You know, they had some juice. दीदी कौन सा जूस क्या क्या जूस है आपके यहाँ पे? इसका लेमन मिलेगा, ऑरेंज, लेमन और ऑरेंज, पामेलो, स्टार फ्रूट, हाँ स्टार फ्रूट, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, बनाना और बनाना. How much? जूस कितना? ऑरेंज 50, पामेलो 40, स्टार फ्रूट 30, पाइनएप्पल 50, वाटरमेलन 50, बनाना 50. Banana. So guys, if you want some drinks, you know, they're making fresh juice here, so you can also come here and have a glass of fresh juice. Yeah. So there's a cultural dance restaurant and cactus garden on the left, and the open park boating is on the right. Open Boating park. अंदर है कैसे? Boating. Okay, so this is the open park, and for boating you guys have to go down. So this is an open park, you know, yeah. So it's like just anyone can come here, and you know, they can spend some time in between nature, and they've got such a wonderful fountain, guys. Look at the fountain. So this is where you can take a ride in the pond. Okay, so from here you guys will be able to go and have a ride at the boat. याते रहोने? From here you guys can go and take a ride. भैया इसके लिए क्या टिकट लेना पड़ता है? अच्छा ऐसे ही कोई. बुदला उठा जरी यहाँ. So there is no ticket for that, but you know, anyone can go and take it. That's it, guys. So I covered the entire orchid garden. So hopefully you like this video. So if you like this, then of course, you know, you're gonna love the next one, because that's the main event. You know, the next one is going to be the safari. Okay guys, so let's go to the safari. I can't wait, you know. So hopefully I'll reach there by, you know, I have to reach there by 1 because the safari starts at 2. Or if you you know, you can also go there at 7:30 in the morning. So it's just for 2 hours from 7:30 till 9:30, and you know, you've got the second batch from 2 o'clock till 4 o'clock. So these are the 2 batches or slots for the jeep safari. But if you want the elephant safari, you know, you've got to you know, book it in the evening before 7, and you know, you've got to go for the elephant safari the next in the morning. Okay, so that's it.